محترم خواتین و حضرات، میں ایڈوکیٹ شرف الدین انور آپ سے مخاطب ہوں، اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہمارے اس مسجد الہی اور اسلامک سینٹر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سینٹر کے تمام ایکٹیویٹیز ورنداون ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت چلتے ہیں، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہاں پر مسجد کے علاوہ نیچے سیلر میں خواتین کے لیے مسلح کا انتظام اور ان کی تربیت کے لیے ایجوکیشن پروگرامز اور کمپیوٹر سینٹر، لائبریری اور غربا مساکین کے لیے اور روزداروں کے لیے رمضان میں جو ہے کام کا انتظام کیا گیا ہے، اور بچوں کے لیے تعلیم کے علاوہ جو ہے بڑوں کے لیے قرآن کی تجوید اور تفسیر وغیرہ کا بھی جو ہے انتظام ہے۔ یہ پچھلے سال میں رمضان سے اب تک کیا ایکٹیویٹیز ہوئے اور انشاءاللہ ہمارا کیا پروگرام ہے، ہمارے محترم بچوں سے میں گزارش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ہمارے مسجد کے امام و خطیب محترم مفتی محمد ریاض صاحب کی پذیرائی کے لیے، ان کی پرگوشی کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ہمارے ٹرسٹ کے ٹرسٹی جناب سید ریاض الدین صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئیں اور محترم مفتی صاحب کی پرگوشی کریں اور ان کی پذیرائی کریں۔ جناب سید ریاض الدین صاحب۔ شکریہ جناب ریاض بھائی، اور میں ہمارے ایجوکیشن سینٹر کے ڈائریکٹر اور خادم مسجد جناب ڈاکٹر محمد خلیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں تشریف لے کے آئے، اور ہمارے مسجد کے بہت ہی ڈائنامک موزن عبید اللہ صاحب جو بہت سے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ تنہا جو ہے انجام دیتے ہیں، ان کی پذیرائی اور خوشی کے لیے ڈاکٹر محمد خلیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کی کوشش کریں۔ شکریہ۔ محترم خواتین و حضرات، آپ نے الحمدللہ اس ماہ مبارک میں بہت ہی بہترین لہن میں تراویح میں خیرت سماعت فرمایا، اور ہمارے مفتی صاحب کے ہونہار فرزند محترم محمد عاکف سلموں کی گلوکوشی اور ان کی پذیرائی کے لیے میں جناب برہان الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر آئے۔ برہان الدین صاحب آئیے۔ جناب برہان الدین صاحب ہمارے ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں، آپ بھی شکریہ۔ جی عاقب صاحب ایک منٹ ہے، آپ کی گلوکوشی اور بھی لوگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ حافظ فیصل حقانی صاحب عاقب صاحب کی گلوکوشی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ یہاں اور کوئی صاحب تو آ سکتے ہیں۔
محترم عرفان فخاری صاحب مفتی محمد ریاض الدین صاحب کی گلگوشت میں نشانہ تشریف لانا. مفتی ریاض محمد ریاض صاحب کی گلگوشت عرفان فخاری صاحب. عبید اللہ صاحب کی گلگوشت جناب عرفان خان صاحب کر رہے ہیں. شکریہ جزاک اللہ خیر. اور میں ہمارے ٹرسٹ کے ٹرسٹی جناب محمد حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس مسجد الہی کے بہت ہی ہارڈ ورکر خادم مسجد حافظ عبدالرؤف صاحب کی گلگوشت کو پذیرائی کریں گے. محمد حسین صاحب محسن صاحب سے گزارش ہے ہمارے ٹرسٹی. شکریہ محترم خواتین حضرات. اب میں مختصر سا جو ہے ہمارے پچھلے رمضان سے اس رمضان میں ہمارے اس ٹرسٹ کی اور مسجد کے کیا ایکٹیویٹیز ہے تھوڑا سا تعارف کرنے کے لیے ہمارے ٹرسٹ کے ٹرسٹی محترم سید غیاث الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لے کے آئے اور آپ سب کو جو ہے اس کی اطلاع دیں. اور عمر صاحب جو ہے کچھ اکرامیات دینا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا عظیم الشان مہینہ ہم سب کو عطا کیا اور ہم نے بہت بڑھ چڑھ کر اس رمضان میں بڑی عبادتیں کی. اور میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اس ورنداون ایجوکیشن ویلفیئر ٹرسٹ کے تمام ٹرسٹیز کو اور مسجد کے جو ہے خطیب و امام ریاض ہاشمی صاحب کو جن کی سرپرستی میں جو ہے رمضان کا مہینہ بہت خیر و عافیت کے ساتھ اور بہت اچھے انداز میں گزرا. اور ہمارے نوجوان حافظ صاحب نے اس سال تراویح کا جو بڑے پرخلوص اور پر انداز میں جو تراویح پڑھائی اس کے بھی میں مبارکباد دینا چاہوں گا. اور ذرا سا جو ہے یہ موقع ہے اس مسجد الہی کا جو ہے کچھ مختصر سی تاریخ اور پس منظر میں آپ کو بتاتا چلوں. ریفریش کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ ہم نے اس سال یہ ہمارا نواں رمضان تھا, 9 سال مکمل ہوئے رمضان کے جو ہے اس سال 2023 میں. تو اس مسجد کی شروعات اگر آپ ورنداون کالونی کے اگر جغرافی سے واقف ہیں تو جو ہے مسجد کے آؤٹر ورنداون کالونی کے آؤٹر باؤنڈریز میں جو ہے 3 مساجد واقع ہیں جو فاطمہ مسجد ہے ایک طرف, دوسری طرف فیض امام اور تیسری طرف جو ہے سبزہ مسجد. 2013-14 میں کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جو ہے سبزہ کی طرف سے جو ورنداون کالونی کا راستہ تھا وہ راستہ بند ہو گیا. تو اسی کے بعد جو ہے ہمارے کچھ جو ٹرسٹ بعد میں فارم ہوا اس کے ممبران جو ہے کوشش شروع کریں کہ جو ہے ورنداون کالونی کے بیچوں بیچ ایک مسجد کا قائم ہونا بہت ضروری ہے. تو اسی کوشش کا جو ہے یہ ہو رہا ہے کہ 2014 میں ہم نے ایک پلاٹ جو ہے محمد مرسی سے لے کے فروزن ولیج کی طرف جاتا تھا, وہاں پہ ایک پرانا مکان تھا, وہ مکان خریدنے کی کوشش کی لیکن جو ہے اس میں کامیابی نہیں ملی.
और पुराने वैसे भी जो है कुछ हमारे वो थे कि पुराना मकान लेके उसको बनाना करना जो है मुनासिब नहीं समझा गया, तो जो है फिर उसके बाद 2-3 महीने ऐसे ही गुजर गए। फिर एक दिन जो है एक संडे का शायद दिन था, उस दिन सियासत में प्लॉट्स के अक्सर एडवर्टाइजमेंट आया करते हैं, तो जो है 2014 में मैंने वो एडवर्टाइजमेंट देखा, तो उसमें वृंदावन कॉलोनी में 235 गज का जो प्लॉट एक बिकने का है, तो मैंने वो नंबर उठाया और फ़ोन किया, तो साहब बोले कि असर के बाद आप आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि वृंदावन कॉलोनी के सारे जो हमको पता था, लेकिन जो है ये प्लॉट के बारे में पता नहीं था, तो साहब आए जो ओनर थे इस प्लॉट के, तो आकर जो है ये प्लॉट दिखाया उन्होंने। और जैसे ही मैंने इस प्लॉट को देखा तो मेरे जहन में बात पक्की हो गई कि यहाँ मस्जिद की तामीर भूली हुई। तो फिर हम ट्रस्टीज मिले, मैं और खलील अहमद साहब, डॉक्टर खलील साहब और अनवर साहब ने उनके ओनर से बात की, और फिर उसके बाद जो है ये 2014 अक्टूबर के आखिरी में जो है यहाँ पे काम शुरू हुआ मस्जिद का। और 2015 जून 19 मुझे याद है अभी भी, जो है पहले रमज़ान थी, तो उस दिन से यहाँ जो है नमाजों का जब नमाजें होना शुरू हुई बाज़ाब्ता जो है, तो उसके बाद से जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलते रहे। और ट्रस्ट के तहत जो है हमारे ये मस्जिद का एक प्राइवेट उसके तौर पर चलाई गई, और उसके बाद जैसे सबसे पहले फाउंडर ट्रस्टी डॉक्टर खलील साहब को चेयरमैन चुना गया 2015 में। उसके बाद 2018 में फिर इलेक्शन हुआ इस ट्रस्ट का, उसमें जनाब खलील अहमद साहब को जो चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद से फिर एक्चुअली अगर देखा जाए तो हर 2 साल में इंतखाबात इलेक्शन होना है इस ट्रस्ट के, लेकिन 2020-22 कोविड की नज़र हो गया, तो फिर 2023 में जो है फिर इलेक्शन हुए 2 महीने पहले। और जनाब बड़ी हमारी हरकियाती शख्सियत एडवोकेट शेखुद्दीन अनवर साहब को चेयरमैन बनाया गया इस ट्रस्ट का। और डॉक्टर खलील साहब जो है जो हमारा एजुकेशन सेंटर जो चल रहा है नीचे लाइब्रेरी में, उसके जो है खलील साहब डायरेक्टर बने हैं, और मस्जिद के खादिम भी उन्हीं के ज़िम्मे हैं, खिदमत जो है वो मस्जिद के सारे उमूर उनके सरपरस्ती में रहेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारे ये पिछले साल से ये साल तक के जो प्रोग्राम चले, ये तो लाइब्रेरी का इफ्तिताह अमल में आया। दूसरा जो है हमारे प्रोग्राम्स जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम्स है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स के प्रोग्राम्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स है। तो ये सब प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जो है अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। और पिछले साल जो हमने इफ्तार का प्रोग्राम शुरू किया था, तो पिछले साल तकरीबन 200 रोज़ेदार का जो है यहाँ पे इफ्तार का इंतज़ाम था, वो इस साल बढ़कर तकरीबन 400-450 के करीब पहुँच चुका है। तो ये सब आपका जो है ताउन है, आप सब भी इस मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इन सब कामों में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारी मदद अफ़ज़ाई की, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग इस मस्जिद से जुड़े रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया जनाब सैयद गैसुद्दीन साहब। अब मैं हमारे एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर मोहम्मद खलील साहब से गुजारिश करूँगा कि वो सेंटर के एक्टिविटीज़ से आपको आगाह करें। डॉक्टर मोहम्मद खलील साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, ये बड़ा अच्छा मौका है कि रमज़ान मुबारक में हम यहाँ बैठे हैं और हर तरह से हम जो है अल्लाह का शुक्र बजा रहे हैं कि सबसे पहले तो हम अशरफुल मखलूक़ात में से, फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से, फिर जो है रमज़ान मुबारक का महीना मिला हमको, और उसमें आज 26 रोज़े रखे और ख़त्म कुरान भी हो गया। ये सब अल्लाह ताला के फज़ल करम से और हमारी कोशिशों से, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हुआ है। इसका भी जो है ना हम शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि जितना शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला उतना ज़्यादा और नेमतों में इजाफा और ज़्यादा इबादत करने की भी तौफ़ीक़ जो है ना कबूल
کام کریں. اس کے قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ بھائی اور بھی اور جو ہے عبادت کرنے کا موقع ملے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق. تو اس طرح سے الحمدللہ ہم شکر گزار کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے جیسا آپ بتائیے بنداون ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ, اس میں دونوں ہیں. یہ ایک تو اللہ کی عبادت ہے, مسجد وغیرہ کے پروگرامس ہیں, اور ویلفیئر ٹرسٹ سارے انسانیت کی بھلائی کے لیے ویلفیئر کے کام ہونا چاہیے. اس کے تحت کچھ نہ کچھ آگے بڑھنے کے اس میں جو ہے نا کچھ آگے بڑھے ہیں. خاص کر یہ مسجد کا ایکسٹینشن ہونے کے بعد سے تھوڑا علاقہ اس کے لیے خاص فوکس کیا گیا. تو اس میں جو ہے ایجوکیشن سینٹر یا اسلامک لائبریری اس طرح کی چیزیں ہم قائم کیے ہیں. اور اس میں مزید بہت کچھ کرنا ہے. اس میں آپ سب لوگوں کا تعاون چاہیے. تعاون یعنی کہ صرف پیسہ نہیں, ہم جان مال اور غم یہ تینوں چیزوں سے تعاون چاہیے. ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے, ایک اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا. اور جو بھی ذہن میں آتا ہے, کوئی اچھے خیال آتے ہیں تو اس کو عمل میں لانا ہو تو کوئی نہ کوئی جو ہے مین پاور ہے اور فائنینشیل اور جو ہے نا ٹائم بھی لگانے والے بندے ضروری, مطلب مین پاور ضروری ہے. اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا یا ہمارے پاس بس ڈسائڈ کیے ہیں کہ کچھ کمیٹیز دوبارہ ہم یہ بنائیں. تو اس کے لیے میں والنٹیئرس کو میں انوائٹ کر رہا ہوں جو بعد میں ہم سے آ کے ملے کہ بھائی کون کتنا وقت دے سکتا ہے اپنے قیمتی وطن میں سے, کیونکہ فرصت تو کبھی نہیں ملتی. فرصت تو جیسا کہتے ہیں نا جو ہاسپٹل میں ہے وہ فرصت میں ہے, جو قبرستان میں ہے وہ فرصت میں ہے. تو جو ایکٹیو ہیں ان کے پاس 24 گھنٹے میں سے اپنا وقت نکال کے کچھ وقت اس کے لیے ہم اگر کوشش کرتے ہیں. نوجوان لوگ بھی کرتے ہیں, نوجوان لوگ ایکسیپشن نہیں ہے, اس ملک میں ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ہم جو ہے نا اس میں بہت سے پروگرام ہم جو ہے یہ کریں سیٹ کریں. تو اس میں ایک ہے کہ سب سے پہلے اسلامک لائبریری, تو کافی کتابیں وغیرہ ہیں, اس میں مطالعہ کرنا ہو, کوئی اس میں جو ہے نا کچھ مزید علم حاصل کرنا ہو, کیونکہ انٹرنیٹ سے تو مل جاتا ہے لیکن اس کی اتھینٹسٹی کوئی وہ مجھے نہیں دیتی. لیکن یہاں ہمارے پاس جو کتابیں ہیں, ہمارے جو کتابیں ہیں تو اس سے جو ہے نا آپ اتھینٹک چیزیں لے کر اس کے بعد آگے بڑھ سکتے ہیں. اس سے جو ہے نا اور قرآن کی تجوید و تفسیر کا جو ہے نا کئی سال سے ہمارے مفتی ریاض قاسمی صاحب چلا رہے ہیں, عشاء کے بعد ہو رہا ہے. یہ بھی ایک ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں سے ہے. اور قرآن اورینٹڈ عربک لرننگ جیسا تعلیم بالغان کہتے ہیں, یا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے اور گرامر سے اس کو سیکھنے کے لیے تجوید اور کچھ سمجھ کے پڑھنے کے لیے ایک 1.5 مہینے سے کچھ کام شروع ہوا, 2 مہینے سے تقریباً. تو اس میں بھی جو ہے نا کچھ زیادہ لوگ نہیں پارٹیسپیٹ کر پا رہے ہیں, لیکن اور بھی لوگ آگے تو اچھا رہتا, ان کو بہت زیادہ فائدہ. اور کمپیوٹر سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے, اس میں بھی کئی چیزیں ابھی امپروو کرنا ہے. اور کیریئر گائیڈنس یعنی لوگوں کو اپنے سیلف امپلائمنٹ کے تحت یا اس میں ایک آلریڈی ایک پروگرام اسٹارٹ ہوا ہے, جیسے کلیننگ پروڈکٹس کو کس طرح مینوفیکچر کیا جائے اور مارکیٹنگ کر کے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنا کے کر سکتے ہیں. جو ایک ایکسپرٹس کو بلائے ہیں اور اس میں جو ہے نا تاکہ اس میں ان کو گائڈ کر رہے ہیں. اور اس میں اگر فائنانس کی ضرورت سے پڑی تو اس کے لیے بھی ٹرسٹ کی طرف سے ہم تیار ہیں اور کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, بشرطے کہ اس کا فیزیبلٹی وغیرہ سب صحیح کیا ہو جائے. اور لوگوں کو انڈیویجول کیریئر گائیڈنس کے لیے بھی ہم نے جو ہے نا اس میں آبجیکٹیو میں اس میں ویڈیو رکھا ہے. اور بزنس گائیڈنس, کیریئر گائیڈنس یا کچھ اور بھی ہے, جیسا کہ IIT اینڈ UPSC گائیڈنس, سافٹ اسپوکن انگلش اسکلس, سافٹ اسپوکن اسکلس یعنی انگلش وغیرہ, پرسنالٹی کاؤنسلنگ. اور ایک سب سے اہم چیز
जो एक मैं बताना चाह रहा हूँ कि फैमिली काउंसिल, जो आपस के छोटे छोटे झगड़े हैं, तो उसको भी जो है ना हम कोर्ट कचहरी में जाने के बजाय अपने दिल को इत्मीनान करें, अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह पर तवक्कल करें। उसके बाद आप हक पे हैं, दूसरा भी समझता वो भी हक पे है, तो क्यों ना मस्जिद की तरफ रुख करें। वो कोर्ट कचहरी में जाके गैर मुस्लिम के पास हम उनके मन्नत समाजत कर रहे हैं, पैसे भी लुटा रहे हैं, हम देखे हैं, हम भी देखे हैं। और सारे कोर्ट सिटी में इधर उधर जो कोर्ट्स में लोगों को देखा है हमने, तो उसमें बहुत अपना वक्त ज़ाया हो रहा है, अपने लोगों की बेइज्जती हो रही है। उसके बजाय मस्जिद के तरफ और जगह होंगे। यहाँ भी हमारे पास भी शुरू की है। एक मिसाल के तौर पर 1-2-3 साल पहले एक मियाँ बीवी के झगड़े का था, दोनों फैमिलीज का तरफ से बड़ा मसला चल रहा था। उनको काफ़ी काउंसलिंग के बाद उनको जो है फाइनली दोनों जोड़ दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली काउंसलिंग में वैसे हो। और भी चीज़ें जो है ना आपस के भाई भाई के कुछ झगड़े, कुछ मसाइल कुछ हैं, तो हम ज़रूर उसके लिहाज से उसकी कमेटी फॉर्म करके आप जो है ना उसकी ज़रूरत पड़े तो कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे, ज़रूरत पड़े तो और बड़े कोई हमारे एडवोकेट साहब भी हैं, और भी किसी को एक्सपर्ट को बुलाना है या किसी और को बुलाएंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बुला के हम उनको जो है ना मसला हल करने की कोशिश करें। तो ये फैमिली काउंसलिंग बहुत बड़ा काम है, आपस में जोड़ना है, उस लिहाज से वो करना है। और जो है टॉस एग्ज़ाम जो हाफिज़ कुरान वगैरह होते हैं, उनको 10th लेवल का एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारी करना है, उसके लिए भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि इसमें जो है वो टास्क प्रिपरेशन है। तो वो उसमें भी हम इंशाल्लाह हाफिज़ कुरान को आगे एडमिशन कराएंगे और उसको तैयारी करेंगे एंड ऑफ द ईयर। और सेल्फ स्टडी कंप्यूटर्स भी है, 10 कंप्यूटर्स हैं वहाँ पर। कोई भी हर आदमी लैपटॉप एफर्ड नहीं कर सकता, कुछ अपने आगे बढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए हम उससे कंप्यूटर क्लासेस भी अगर मुनासिब वक्त में हम उसको चलाएंगे, हमारा इरादा है। तो इसके लिए मैं यही फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है उसमें से वॉलंटियर करिए और अपना आपको आके हमको जो है ना बताइए कि भाई मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मैं ये सब ऐसा ये चला हूँ, मैं इंडस्ट्री में था, मैं इसमें था, मैं बना जगह था। बहुत बड़े माशाल्लाह जो है ना काफ़ी एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो वी कैन राइट द बुक्स ऑन देयर लाइफ्स, मतलब लोगों के अपने जो रिटायर्ड पर्सनस के उनके अगर उनके कारनामे देखा जाए तो बड़े अप्रिशिएबल है। लेकिन उसका कुछ फ़ायदा अगले जनरेशन को भी फ़ायदा करवाना है, तो हमारे से जुड़िए, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ एक तरतीब में लाएंगे तो उसको फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाह खैर। आप और कोई खास बात लगी है, इसमें काफ़ी चीज़ें बता दिया। और वॉलंटियर्स को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुद ही आइए, नाम लिखाइए, आज लिखाइए, बाद में भी जो है ना आप लोग करीब में भी हैं, इस मस्जिद के मुसल्ली नहीं भी हैं, तभी आप जो है ना इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके लिए काम कर सकते हैं। बशर्ते कि जो है ना इसका सोल ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्लीज़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए इखलास के साथ हम आगे बढ़ना है। इसमें जो है ये चीज़ के वास्ते हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हमारे सदर साहब भी जो है ना इसके ऊपर ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के वास्ते बहुत पहले से कहते हैं, और इंशाल्लाह अब इसको इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया, इंशाल्लाह करेंगे। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सलीक साहब, आप डायरेक्टर हैं एजुकेशन सेंटर के। ख़वातीन हज़रात, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, क्योंकि मोहतरम यूसुफ साहब तशरीफ़ फरमाए यहाँ पर, मैं उनका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए बस थोड़ा सा आपके ज़हन में ये लाना चाहता हूँ कि अब माशाल्लाह जो है ये महीने में देखिए इतने सारे लोग जो है जुड़े हैं, तो अगर अब ये सिलसिला कंटिन्यू रहना अगले रमज़ान तक तो क्या करना था। अब देखिए हमारे में अपने में कई लोग ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये महीने में आए, लेकिन दीन से वफ़ियत नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं नमाज से वफ़ियत नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं हमें तिलावत कुरान पाक नहीं आता, समझते नहीं, अगर नहीं समझे तो फिर अमल कैसे करें। कुछ लोग जो है जो ये सारे चीज़ों की वफ़ियत है अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा हाई लेवल में जो है फ़िक़्ह वगैरह जो है समझना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग तभी पॉसिबल होगा जब मस्जिद से जुड़ें। तो मेरी गुजारिश क्या है कि आप
each and every one. मस्जिद से जुड़ने का मतलब है कि आपका नाम मुफ्ती साहब के पास लिखाएं, आपका नंबर लिखाएं, और ये यहाँ पर के मस्जिद में एक कोर्स है, छोटा सा कोर्स, जिसमें जो है इब्तिदाई इस्लाम के बारे में, दीनियात के बारे में बताया जाएगा, जिसको बिल्कुल दीन है, उन लोगों के लिए एक छोटा कोर्स है। उसके बाद एक कोर्स है जिसको जो है नमाज नियाती, तो नमाजों को जो है मुफ्ती साहब लिखाएंगे, उसके लिए एक कोर्स है। एक ऐसा भी कोर्स है जिसको जो है तजवीज़ से कुरान आपको सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है ज़रा हाई लेवल लोगों के लिए, आपके जैसे लोगों के लिए जो है फ़िक़्ह वगैरह सीखना है, तो इसके सारी चीज़ों के लिए डायरेक्टर आप हमारे इमाम व मुफ्ती जनाब रियाज कासमी साहब हैं। आप हर एक आदमी फर्दन अपना नाम और नंबर लिखाइए, क्योंकि हम लोग ये कैटेगरी में से एक कैटेगरी में जरूर है, कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल, क्योंकि ब्याह से वो दूसरी जगह जब मुंतकिल होंगे तो कम से कम हमारे अमाल जरा सही हो जाएंगे। तो ये हमारा मतलब दीन सही करने के लिए आपको जो है ये एक आदमी को दिया जा रहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा दीन हम जो है सीखें, नमाज सीखें, कुरान सीखें, इस और जो है फ़िक़्ह सीखें, और जो है सही तर्ज पे जो है अमल करें, और कुरान को जो है खाली रटने के बजाय जो है थोड़ा समझें और उस पर अमल करें। आपके सामने इमाम साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, अवेलेबल हैं, और रोजाना उनसे एक सवाल जरूर करें। समझ रहे हैं? आपको कुछ भी अगर सवाल नहीं समझ में आए तो खाली जो है सीधे हाथ से खाना, बाएं हाथ से खाना, कुछ ही आगे सवाल करेंगे तो मालूम होगा। तो सवाल करिए जिससे जो है जुड़े हुए होते हैं। एक पहली चीज। दूसरी चीज अल्हम्दुलिल्लाह जो है यहाँ पर काफ़ी लोग फ़कीर आते हैं, प्रोफेशनल फ़कीर हैं। हमारे भाई बहुत ही माशाल्लाह से जो है नरम दिल के हैं, लोगों को मदद करते हैं। अभी मैं कल ही देख रहा था, झूम के झूम लोग आ रहे हैं, बुर्खा पहन के लोगों से मांग रहे हैं, लोग 100 रुपये 1000 रुपये दे रहे हैं उनको। फिर आखिरी में 1 बजे जो है बुर्खा उतार के रख लेके जो है आप लोग में पूरे मुनज़्ज़म तौर पर बता दें। तो भाई यहाँ पर मस्जिद इलाही में एक फंड कायम किया गया, जिसके इंचार्ज जनाब उबैदुल्लाह साहब मौजूद हैं हमारे। उनके पास हम लोग क्या करें, कुछ भी नहीं, हमको जो साल में देना है या महीने में देना है, जो भी 100 रुपये 200 रुपये 1000 रुपये 5000 रुपये उनके पास रखा दिए। तो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, अगर हम वो शराब पीने वालों को देंगे तो आपके पैसे ले जाके शराब पीएंगे, समझे जुआ खेलेंगे, उड़ा देंगे। आप सवाब के लिए दे रहे हैं, उल्टा जो है आप अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये पैसे पूरे जमा करके जो गरीब और मुस्तहिक़ लोग आ रहे हैं, जिसके पास वाकई में जो है घर में तंगी है, तो उनको राशन दिया जा रहा। ये साल के 12 महीने की बात करूँ मैं, रमजान की नहीं। और जिसको वाकई में मेडिसिन की जरूरत है, ऑलरेडी जो है पैसे हुसैन मेडिकल हॉल में हम रखवा दिए वहाँ पर, उनको यहाँ पर जो है भिजा के मेडिसिन दे रहे हैं। और किसी को एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, फीसों के लिए, तो यही आपके पैसों में अभी फिलहाल क्या है, हमारे ट्रस्टी कंट्रीब्यूट करें, कुछ लोग भी जो है लिए हैं। तो इससे क्या है, आपके पैसे सही लोगों के पास जाते हैं। आप यहाँ पर बैठे सवालों को देने के बजाय आपके पैसे यहाँ पर, क्योंकि फंड है, रजिस्टर है भारत का लिखा हुआ है, तो आप दीजिए, इससे जो है सही लोगों के पास देंगे। पहला काम। दूसरा जो है, ये एक रूम के मदरसे चल रहे हैं, उस पर जामिया फना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जो है लिख के लगा रहे हैं, और उनके पास जाके देखे तो क्या है, एक रूम है, बच्चों को रख लेके आ लिए 2-4, और ये पूरा जो है उनका पेशा हो गया। तो इसके लिए हम जरा वो डॉक्टर खलील साहब को जो है जिम्मेदारी दी कि पूरे इंडिया से जो है जो बड़े बड़े मुस्तहिक़ मदरसे हैं, जो जैसा मिशकात उलूम है, देखिए आप लोग जो काम कर रहे हैं, तो इनकी मदद के लिए हम लोग यही पैसे सब जगह देने के बजाय अलग अलग डॉक्टर साहब के पास रखा दिए, इनके पास एक फंड क्रिएट कर दिया। तो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, जो भी मदरसे वाले आ रहे हैं पूरी तहकीक़ात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये साल इंशाल्लाह विजिट भी करेंगे, जाके पर्सनली जाके देखेंगे, और मुस्तहिक़ और वाक़ई में जो मिलत इस्लामी की खिदमत करने वाले मदरसों की सेंट्रलाइज फंडिंग करेंगे। आपके पैसे इधर उधर देने के बजाय पैसे ऐसे ले जा रहे हैं, और 60% उन्हें जो है ले जा रहा, 40% वहाँ जा रहे नहीं जा रहे, मालूम सही लोगों के हाथ में पैसे नहीं जा रहे। तो आप दोनों चीज़ों को हम लोग क्या करें, उसको जो है सेंट्रलाइज करें। तो ये 2 चीज़ें हैं। और एक तो दीन से जुड़े रहने के लिए मुफ्ती साहब के लिए बताया मैंने, और जो है दूसरे ये गुरबा के लिए एक अलग फंड है ये। और उसी तरीके से जो है हमारे जो एजुकेशन सेंटर में
लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना और उनकी एजुकेशन तरबियत करना, इसके लिए भी एक अलग फंड कायम करें जिसमें लाइब्रेरी है। तो हमारे पास महल्ले में आजकल कैसा माहौल है तो घरों में, अब अगर फैमिली बड़ी है, टीवी देख रहे लोग, बच्चों को पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता, तो हम चाह रहे हैं कि बच्चे आपके यहाँ पर आएँ और जो है अपनी पढ़ाई की तकनीक करें। उनकी पूरी सहूलत है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो ये सारे चीज़ों का यहाँ आपके लिए अवेलेबल है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जुड़ें और इससे फ़ायदा भी हासिल करें, ताकि जो है हमारी आखिरत समझ आए। आखिरत के लिए, कल के लिए हम जो काम कर रहे हैं, हमारे को इतना मौका है। देखिए, आज नमाज पढ़ने गए तो नमाज पढ़ने देते हैं, और कल के दिन खुदा न खासा हमारे पास भी जो है वक्त आने वाला है। ये क्यों भाई, अगर हम लोग अगर सुधर गए तो इंशाअल्लाह ये वक्त को डाल सकते हैं। हमारे सामने एग्जाम्पल है, आप तरावी में पढ़ सकते हैं, बाहर आप जो है कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ में जोर से अजान दिए तो लोग मुसलमान हो जा रहे हैं। तरावी पढ़े, कुछ हमने नमाज पढ़ने से लोगों को दिखा मॉल में या रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, तो लोग मुसलमान हो जाने के लिए डर रहे लोग। तो इसके लिए भाई मेरे, मस्जिद से जुड़ना ज़रूरी है, और अपना नाम आप जो है मुफ्ती साहब के पास लिखाइए, नंबर भी लिखाइए, और किसी न किसी तरीके से रोज़ाना मिलिए, सवाल करिए। शुक्रिया। वाक़ई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।